पाइयां Thank you. This is without question the latest news conference I've ever had. We love you. Thank you. I appreciate it very much, and I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight, and a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people, and we won't stand for it. We will not stand for it. I want to thank the First Lady, my entire family, and Vice President Pence, Mrs. Pence, for being with us, all three of us. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. We won the great state of Ohio. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. We're up by 2.5% or 117,000 votes with only 7% left. They're never going to catch us. They can't catch us. Likewise, we've clearly won North Carolina. We're up 1.4%, or 77,000 votes with only approximately 5% left. They can't catch us. We also, if you look and you see Arizona, we have a lot of life in that. And somebody declared that it was a victory for, and maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get, because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it, but these were friendly Trump voters, and that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight, he said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. And we don't even need it. We don't need that. That was just a state that if we would have gotten it, it would have been nice, Arizona. But there's a possibility, maybe even a good possibility. In fact, since I saw that originally, it's been changed, and the numbers have substantially come down just in a small amount of votes. So we want that, obviously, to stay in play. But most importantly, we're winning Pennsylvania by a tremendous amount. We're up 600, think of this. We're up 690,000 votes in Pennsylvania, 690,000. These aren't even close. It's not like, oh, it's close. With 64% of the vote in, it's going to be almost impossible to catch. And we're coming into good Pennsylvania areas where they happen to like your president. Yes. So we'll probably expand that. We're winning Michigan by, I'll tell you, I looked at the numbers. I said, whoa. I said,
Wow, that's a lot. By almost 300,000 votes. And 65% of the voters in it. And we're winning Wisconsin. And so we're winning. We don't need all of them. We need, because when you add Texas in, which wasn't added, I spoke with the really wonderful governor of Texas just a little while ago, and Greg Abbott, he said, congratulations. He called me to congratulate me on winning Texas. I mean, we won Texas. I don't think they finished quite the tabulation, but there's no way. And it was almost complete, but he congratulated me. Then he said, by the way, what's going on? I've never seen anything like this. Can I tell you what? Nobody has. So we won by 107,000 votes with 81% of the vote. That's Michigan. So when you take those 3 states in particular, and you take all of the others, I mean, we have so many, we had such a big night. You just take a look at all of these states that we've won tonight, and then you take a look at the kind of margins that we've won them by. And all of a sudden, it's not like we're up 12 votes and we have 60% left. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. And we have all these announcers saying, what happened? And then they said, oh, because you know what happened? They knew they couldn't win. So they said, let's go to court. And did I predict this, Newton? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. I said exactly, because either they were going to win, or if they didn't win, they'll take us to court. So Florida was a tremendous victory, 377,000. Texas, as we said. Ohio, think of this. Ohio, a tremendous state, a big state. I love Ohio. We won by 8.1%, 460, almost 500,000 votes. North Carolina, big victory with North Carolina. And so we won there. We lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this, and as far as I'm concerned, we already have won. So I just want to thank you, and I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us, and Mr. Vice President, say a few words, please. Thank you, Mr. President. I want to join you in thanking more than 60 million Americans who have already cast their vote for 4 more years for President Donald Trump. And while the votes continue to be counted, we're going to remain vigilant, as the President said. The right to vote has been at the center of our democracy since the founding of this nation, and we're going to protect the integrity of the vote. But I really believe with all of my heart, with the extraordinary margins, Mr. President, that you've inspired in the states that you just described, and the way that you launched this movement across the country to make America great again, I truly do believe, as you do, that we are on the road to victory, and we will make America great again.
बाइडेन भी आए थे और उन्होंने भी दावा किया कि वो जीत रहे हैं। वहीं ट्रंप अब से कुछ देर पहले उनको आपने सुना और वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसी ही उम्मीद उन्होंने की थी वैसी जीत उन्हें मिलेगी, इस बात का दावा भी उन्होंने किया। और इसके साथ साथ जो बाइडेन पर निशाना भी उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि हार के डर के वजह से कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं जो बाइडेन। इस बात का जिक्र भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया और इसके साथ साथ जहां जहां उन्हें अभी तक सफलता मिली है उसके लिए जनता का आभार भी जताया और कहा कि बड़ी जश्न की तैयारी में इस वक्त वो जुट जाएं, उनके समर्थक जुट जाएं क्योंकि जीत उनकी होने वाली है। लेकिन फिलहाल जो राज्य बचे हैं जहां पर नतीजे आने बाकी हैं, फिलहाल वहां पर दबदबा ट्रंप का ही माना जा रहा है और इसीलिए भरोसे से भरे हुए डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। वहीं जो बाइडेन का कहना है कि वो भी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जीत उनकी होगी। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? डेमोक्रेट 220 पर इस वक्त नजर आ रही है और रिपब्लिकन 213 पर। लेकिन यहां पर अगर एक राज्य यानी आप समझिए 3 तो गिरी गिरी हालत में मिलने वाले हैं, तो ऐसे में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है जो आने वाले समय में दिख सकता है और इसीलिए माना जा रहा है कि बाइडेन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं क्योंकि अब वो राज्यों का खुलासा होगा, यानी वो राज्यों के नतीजे आने शुरू होंगे जहां पर ट्रंप का दबदबा है। इस बात का जिक्र भी इलेक्टोरल वोट है उसका जिक्र उन्होंने किया कि धीरे धीरे वो वहां पर भी जीत रहे हैं। तो एक तरीके से इस वक्त उन्होंने अपना चिर परिचित अंदाज भी दिखाया। जिस तरीके से वो जब लोगों से बात करते हैं, जो उत्साह वहां पर दिख रहा था वो देखने लायक था और वो उनके मुताबिक कि ये उत्साह ही ये दिखा रहा है कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं और ना सिर्फ पसंद करते हैं, एक बार फिर से उस गद्दी पर बैठाएंगे जिस गद्दी को वो चाह रहे हैं, जिसके लिए ये पूरा चुनाव देखिए हो रहा है राष्ट्रपति पद के लिए और वहीं वो बैठना चाह रहे हैं। उसके लिए जनता का शुक्रिया भी इस मंच से उन्होंने अदा किया और इसके साथ साथ वो चूके नहीं है। जो बाइडेन का जिक्र उन्होंने किया और ये कहा कि वो जान रहे हैं कि वो हारने वाले हैं और हार के डर से ही वो कोर्ट जा सकते हैं। इस बात का जिक्र भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस मंच से किया। आप समझिए इस वक्त वहां आधी रात है, आधी रात को जनता को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप थे। We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We're going to have to be patient. It ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. तो अब से थोड़ी देर पहले जो बाइडेन भी सामने आए थे, जनता से मुखातिब हुए और उन्होंने आभार जताया कि जिस तरीके का प्यार उन्हें मिला है उससे वो भावुक हो रहे हैं और उन्होंने भी उस वक्त अपने जीत का दावा किया था। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले कितनी गहमा गहमी की स्थिति इस वक्त होगी अमेरिका में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं क्योंकि जो बाइडेन वो भी पहुंचते हैं जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। वहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप अब से थोड़ी देर पहले आए और उन्होंने भी संबोधित किया और इस बात का जिक्र भी किया कि जो बाइडेन समझ चुके हैं कि वो हार रहे हैं और इसलिए वो कोर्ट भी जा सकते हैं। पहली बार नहीं है जब ये कोर्ट में मामला जा सकता है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके का मोड़ ये चुनाव लेता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार एक नया रंग भी नजर आया है और वो रंग है हिंदुत्व का। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए इस बार रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन आमने सामने रहे, जिस मुकाबले पर लंबे वक्त से दुनिया की नजर थी। कोरोना संकट के बावजूद उसे लेकर अमेरिका में खासा उत्साह नजर आया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव वही लड़ सकता है जो 3 शर्तें पूरी करता हो। शर्त नंबर 1, अमेरिका का नागरिक होना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि उसकी पैदाइश अमेरिका की हो और वो अमेरिका का ही नागरिक हो। दूसरी शर्त के मुताबिक उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 वर्ष हो और आखिरी शर्त ये है कि दावेदार बीते 14 साल से अमेरिका में ही रह रहा हो। अमेरिका और भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र, लेकिन दोनों में ही चुनाव में सरकार चुनने की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग होती है। अमेरिका में यूं तो बाकी पार्टियां भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन 2 ही पार्टियों में मुख्य मुकाबला होता है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। हर बार चुनावी घमासान इन्हीं 2 पार्टियों के बीच होता है। अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया भी बेहद जटिल है। हर लोकतांत्रिक देश की तरह अमेरिका में भी कई लोग राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अपनी उम्मीदवारी के लिए इन्हें पहले कदम के रूप में अपनी विचारधारा वाली पार्टी में शामिल होकर दावेदारी पेश करना पड़ता है। ये सभी अपने दल के सदस्यों का समर्थन जुटाने के लिए अपने अपने इलाकों में प्रचार करते हैं।
किसी एक राज्य या इलाके में कई दावेदार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी एक इलाके में एक दावेदार को ही रेस में आगे बढ़ने का मौका देती है। कौन इस रेस में आगे जाएगा, इसका फैसला भी लोकतांत्रिक तरीके से ही होता है। चुनाव की ये प्रक्रिया दो तरह से होती है। इसके बाद इनके चुनाव की बारी आती है, जिसके दो तरीके हैं। पहला प्राइमरी और दूसरा कॉकसस। प्राइमरी चुनाव राज्य सरकारें कराती है। ये चुनाव खुले या बंद तरीके से होते हैं। खुले रूप में चुनाव में पार्टी के समर्थकों के साथ ही आम जनता भी वोट के जरिए उम्मीदवार चुनती है, जबकि बंद रूप से मतदान में सिर्फ पार्टी से जुड़े समर्थक ही उम्मीदवार के लिए वोटिंग करते हैं। ज्यादातर राज्य प्राइमरी तरीका ही अपनाते हैं। दूसरा तरीका कॉकस है, जिसमें पार्टी के समर्थक एक जगह जमा होते हैं और अलग अलग उम्मीदवारों की अलग अलग मुद्दों पर राय सुनकर किसी एक उम्मीदवार को हाथ उठाकर समर्थन देते हैं। ये बहुत कम राज्यों में होता है। प्राइमरी या कॉकस के सभी राज्यों के मिले नतीजों के बाद ये साफ हो जाता है कि दोनों दलों से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन कौन होंगे। इसके बाद नेशनल कन्वेंशन की बारी आती है, जिसमें प्राइमरी या कॉकस से चुने गए डेलीगेट्स वोट के जरिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनते हैं और सर्वोच्च टीम उम्मीदवार के नाम का आधिकारिक रूप से ऐलान करती है। फिर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपने समर्थकों के सामने एक भाषण देते हुए उम्मीदवारी को स्वीकार करता है और इसके साथ ही अपनी मर्जी से चुने हुए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करता है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन इन्हीं तरीकों से अपने अपने दल की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने गए और दोनों ने इसी तरीके से निक्की हेली और कमला हैरिस की उम्मीदवारी का ऐलान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की असली प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। सारी बाधाएं दूर होने के बाद अपनी अपनी पार्टी की तरफ से चुने गए उम्मीदवार पूरे देश में प्रचार के लिए निकलते हैं। देश भर में प्रचार के साथ ही इन उम्मीदवारों के बीच अलग अलग मुद्दों पर कई चरणों की लाइव बहस भी होती है। परंपरा के मुताबिक इस बार भी ये बहस हुई, जिसमें कभी ट्रंप तो कभी बाइडेन भारी पड़े। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नवंबर के पहले मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होती है। इसमें मतदाता इलेक्टर्स का चुनाव करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम में सभी राज्यों की आबादी के हिसाब से निश्चित संख्या में इलेक्टर्स तय हैं। जब लोग वोट डालते हैं तो देश का राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्य का प्रतिनिधि चुनते हैं। जब अमेरिकी जनता एक बार अपने इलेक्टर को वोट दे देती है तो उसका राष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई हाथ नहीं बच जाता। इसके बाद इलेक्टर पर निर्भर करता है कि वो किसे राष्ट्रपति बनाना चाहता है। इस व्यवस्था को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। उम्मीदवारों को वोट में इलेक्टोरल कॉलेज जीतना होता है। हर इलेक्टर को राष्ट्रपति चुनने के लिए एक वोट देने का हक है। कुल 538 वोट होते हैं। किसी उम्मीदवार को जिस राज्य में सबसे ज्यादा इलेक्टर्स के वोट मिलते हैं, उस राज्य के सभी वोट उसी खास उम्मीदवार के खाते में चले जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज के सिस्टम को उत्तर प्रदेश के इस उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। मसलन उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और अगर कोई पार्टी बहुमत यानी 40 से ज्यादा सीटें हासिल कर लेती है तो फिर वो पूरे स्टेट को जीत लेती है और उस स्टेट के सभी 80 वोट उस पार्टी के खाते में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरकर जिस उम्मीदवार को 270 या फिर उससे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। केवल 2 राज्यों मेन एंड नेब्रास्का में वोटों के अनुपात में इलेक्टर्स चुने जाते हैं। चुनाव की रात ही विजेता के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पर इलेक्टर्स 14 दिसंबर को अपना वोट डालकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और अगले साल 20 जनवरी को विजेता उम्मीदवार राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। तो बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या एक बार फिर से ट्रंप की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि ट्रंप का तो यही दावा है। हालांकि जो आंकड़े फिलहाल जो दिख रहे हैं वो 220 जो बाइडेन के दिख रहे हैं और रिपब्लिक के 213। और इसमें पेच क्या है, दरअसल अब जिन राज्यों के निर्णय अभी आने बाकी हैं उन पर ट्रंप का दबदबा बताया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले ही ट्रंप ने अमेरिका की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए चुनाव जीतने का दावा किया। Getting ready for a big celebration. Oh, yeah. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and
just celebrate something that was so beautiful, so good. तो न सिर्फ जीत का यहाँ पर दावा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र भी यहाँ पर कर दिया कि जो बाइडेन महसूस कर रहे हैं, वो जानते हैं कि वो हार रहे हैं और इसीलिए वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। इससे पहले जब चुनाव पर बात हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि जो निर्णय आएगा वो उसको मानेंगे या नहीं, लेकिन जो बाइडेन ने उस वक्त कहा था कि वो जो भी निर्णय जनता का होगा वो स्वीकार करेंगे। लेकिन फिलहाल जीत जिस तरीके से मिलती हुई फिलहाल दिखती हुई नजर आ रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बचे हुए राज्य हैं वहां पर अच्छी उनकी पकड़ है और ऐसे में निर्णय उनके पाले में जा सकता है, जनता उनके पक्ष में आ सकती है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अब जीत का दावा कर रहे हैं। और न सिर्फ जीत का दावा बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि एक बड़े जश्न की अब तैयारी करनी होगी और जनता का शुक्रिया अदा भी साथ ही इस मंच से किया। और क्या क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, जरा एक बार फिर से सुनते हैं। The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. We won the great state of Ohio. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. और इसी बीच हमारे साथ टेक्सास से आदित्य रस्तोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे खास मेहमान इस वक्त। आदित्य, अब डोनाल्ड ट्रंप भी सामने आए, जो बाइडेन भी सामने आए, फिलहाल जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं और कैसे पासा पलट सकता है, पहले तो ये समझा दीजिए। तो अभी जैसा जो आदित्य, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी, बोलिए। अभी जो आंकड़े आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो हवा है, जो मैं टेक्सास में रहता हूँ, यहाँ पे जो हवा है और जनरल जो डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट है, उस तरह से मीडिया में जो खबर आती है उससे काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे लोग और जो रिज़ल्ट अभी आया है वो दर्शा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ काफ़ी सपोर्ट है। यहाँ पे अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉइंट उन्होंने रखा है कि पेंसिल्वेनिया में और जॉर्जिया में इलेक्शन की गिनती रोक दी गई है। तो अब इसके बाद क्या होता है, उनका जो कहना है कि और कहीं से वोट आ सकते हैं, जो एसेंशली वो कह रहे हैं कि कुछ घोटाला हो सकता है। तो उनको हो सकता है कुछ जानकारी हो जो और को नहीं है। तो जी, तो वो जो घटना चल रही है उस वजह से अब आगे क्या होता है, अब कोर्ट का निर्णय उन्होंने कहा है कि कोर्ट के सामने वो जाएंगे, तो आगे क्या होता है वो पता चलेगा। जो बाइडेन का जो सिचुएशन है उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है। उन्हें लगा था फ्लोरिडा फ्लिप होगा, उन्हें लगा था टेक्सास फ्लिप होगा, हालांकि एरिज़ोना हो गया है जो एक्सपेक्टेड ट्रम्प के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। और उसके अलावा अभी एक काफ़ी कांटे का मुकाबला है, जो देखना पड़ेगा क्या होता है। ठीक है आदित्य, आप रहिए हमारे साथ। वहीं देखिए, जिस तरीके से फिलहाल अभी जो स्थिति दिख रही है, वो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और वो पेंसिल्वेनिया का जिक्र जैसे आप भी कर रहे हैं, आप टेक्सास का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी टेक्सास का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जैसी उम्मीद उन्होंने की थी दरअसल जीत भी वैसी ही मिलेगी। लेकिन यहाँ जो ओपिनियन पोल थे, जो लोगों का सोच थी, जो दिख रहा था कि बाइडेन के पक्ष में हो सकता है, पासा किस तरीके से पलट रहा है वो जरा हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जो बाइडेन 220 है, रिपब्लिकन के 213 है। ये आंकड़ा कैसे बदल सकता है? जो और राज्य बच्चे हैं वहां किस तरीके का दबदबा डोनाल्ड ट्रंप का है? तो जैसे मिशिगन है, मिशिगन में वहाँ पे रस्ट बेल्ट जिसको कहते हैं, जहाँ पे बिल्कुल जो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी इंडस्ट्रीज लाई जो मेक्सिको जा रही थी, जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं सारे वहाँ जा रहे थे। तो पिछले 4 सालों में काफ़ी बदलाव आया है, तो डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी सपोर्ट है वहाँ पे।
और जो इलेक्शन में रिजल्ट आ रहा है मिशिगन में, जो अगर आप पोल्स ले कि जो पहले जो हवा थी उसमें लग रहा था मिशिगन बिल्कुल बाइडेन को जाएगा, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आगे हैं। पेंसिल्वेनिया में काफ़ी आगे हैं वो इस वजह से क्योंकि पेंसिल्वेनिया में फ्रैकिंग काफ़ी होती है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी होती है और बाइडेन उसको अभी बंद करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट काफ़ी रिएक्शन हुआ, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है बहुत पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में। तो इस वजह से अब जॉर्जिया में काफ़ी ऑलरेडी काफ़ी आगे हैं, काफ़ी वोट आ भी काफ़ी ऑलमोस्ट सारी गिनतियाँ हो भी चुकी है जॉर्जिया में। तो अगर ये जॉर्जिया आ गया, पेंसिल्वेनिया आ गया, मिशिगन आ गया और साथ में विस्कॉन्सिन आने की भी चांसेस है, अगर ये तीनों आ गया फिर डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता बिल्कुल साफ है।